welcome to the special telecast Mission Election Jammu and Kashmir. Maximum work that has been possibly done in the past 5 to 10 years in Kashmir has been in sports. It is to channel the energy of young men and women, boys and girls, which is prevalent during the conflict, into something positive. And thereby, everywhere I go in Kashmir in the past few days, there are tournaments happening. There are cricket tournaments, football league matches, taekwondo, karate, all sorts of sports events. And it's incredible to see. But that also means that the effort that has been put in by different groups, it's shaping up the future of these boys and girls in Jammu and Kashmir, and thereby shaping up the future of Jammu and Kashmir. And most of them who I met are first-time voters. And that is why in this special election episode, I decided to bring you how youth, sports, first-time voters are deciding the future of J&K. Let's begin. The government's Jammu and Kashmir Sports Council and the Indian Armed Forces have invested heavily in sports in the past 5 years, nurturing young talent away from the conflict and toward progress. A new dawn of ambition has emerged. The Sports Council gearing up for the tournaments in and around Srinagar. These are the Downtown Heroes Football Club. A name synonymous with stone pelting and civilian blockade, is today a leading team in the Football League. For a Kashmir young man, एक इमेज रही है हमेशा पिछले कुछ सालों से, क्योंकि इंसिडेंट्स भी हुए होते हैं, चाहे पेल्टिंग हो, वायलेंस हो और कॉन्फ्लिक्ट रहा है. तो आज जब फुटबॉल में आप एक स्टार हो, लीग मैच में खेल रहे हो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, कितना एफर्ट आपको लगता है स्पोर्ट्स से हुआ है? ये एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब है, तो जब मतलब हर डे प्रैक्टिस होती है तो हम अवॉइड होते हैं ड्रग्स से या हर किसी चीज से. उससे फर्क पड़ता है. बहुत ज्यादा. Joining the Kashmiri boys is a fellow player from Jammu region. As these young men toss the ball around, they're also tossing aside a stereotype. What should the leaders do? Youngsters के लिए, sports के लिए क्या करना चाहिए J&K के लड़कों के लिए? पूरा स्पोर्ट्स को ना आगे थोड़ा ले जाना, हायर लेवल पे, नेशनल लेवल पे ले जाना चाहिए. तो यंगस्टर्स के लिए कितना जरूरी है कि स्पोर्ट्स में इन पुश आए, और क्या प्रॉब्लम्स आपकी एज ग्रुप फेस करती है? मैम यही है कि एक आइडेंटिफिकेशन जो होती है स्पोर्ट्स की, चाहे वो फुटबॉल हो या कोई भी गेम हो, उस पर थोड़ा सा फोकस ज्यादा करना चाहिए कि मतलब जो भी हमारा अपकमिंग लीडर होगा जिसको हम वोट देंगे, तो उसको थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि एक अलग से कोई स्कीम होनी चाहिए जिसमें आप सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन को आइडेंटिफाई करो, चाहे वो स्कूल से हो, चाहे वो किसी मतलब लोकल ग्राउंड से हो. जैसे स्पोर्ट्स काउंसिल बहुत कर रहा है, लेकिन बैकग्राउंड स्पोर्ट भी बहुत चाहिए होती है. पॉलिटिकल स्पोर्ट तो मेन ही है हर चीज के लिए. कश्मीर में तो मैं बहुत स्पोर्ट्स देख रही हूँ. जम्मू का क्या सिचुएशन है अभी? मैम जम्मू का सिचुएशन तो पहले तो ठीक था जब मैंने स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद डाउन हो गया. जम्मू में बहुत ज्यादा क्रेज था, खासकर फुटबॉल का. हम परेड ग्राउंड में खेलते थे तो मार्केट बंद हो जाती थी मैच देखने के लिए. आज के टाइम पे आप जाओगे तो एक बंदा भी नहीं मिलेगा आपको परेड ग्राउंड में. वही मैम लैक ऑफ आइडेंटिफिकेशन, लैक मतलब बच्चों मतलब सपोर्ट नहीं है, और पेरेंट्स को एक मतलब भरोसा नहीं है गवर्नमेंट पे कि हमारे स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे के लिए कुछ हो. जैसे डाउनटाउन ने एक प्लेटफॉर्म दिया, पूरे J&K में डाउनटाउन है और रियल कश्मीर है, मतलब जम्मू से कोई टीम नहीं है. तो मैं ये बोलूंगा कि जम्मू से भी बंदों को सपोर्ट करना चाहिए, स्पॉन्सर होने चाहिए. This is the Under-17 national team camp being flagged off from Srinagar for participation in the SAF and AFC qualifiers. For the second consecutive year, the All India Football Federation has chosen Kashmir for the training camp because of the facilities and support provided. So, Nuzhat Gul is the secretary of J&K Sports Council, and how important do you think right now it's to ensure that youngsters are provided the opportunities of sports? It's very, very important because for youth engagement, for directing and diverting youth towards positive activities, something positive like sports is a boon. And we provide them platforms and podiums, and they are able enough to get the medals. In last 4-5 years, the medal tally of J&K Sports Council athletes has gone from 2-digit to 3-digit. So that itself shows, and especially the girls are doing very well. Now, standing very quietly and humbly, but those who recognize him, Parvez Rasool, the cricketer, he's put J&K Kashmir, specifically South Kashmir, on a national international map as well. Parvez, today when you look at this, it's different from your time of sports to times now. What has changed, do you think? Definitely. पूरे कश्मीर में आजकल जो स्पोर्ट्स का
खासकर फुटबॉल क्रिकेट मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा रीच है अभी। Yes. पूरे वादी में अगर आप देखेंगे पूरी स्पोर्ट्स का एक माहौल है। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि प्रोफेशनली प्लेयर्स खेल रहे हैं। पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। जब हम खेलते थे हम एक पैशन के लिए खेल, बट आज प्रोफेशनली बच्चे आ रहे हैं, ट्रेन हो रहे हैं, प्रोफेशनल कोचेस के साथ काम कर रहे हैं। तो अब बच्चों को लग रहा है कि स्पोर्ट्स में फ्यूचर है। Do you think cricket is the highlight here or other sports? अदर स्पोर्ट्स एज वेल, बट क्रिकेट आई एम ए क्रिकेटर। No passion हो, दिल से हो, दिल से हो। यस यस। But the biggest difference has emerged watching these girls fight it out, practicing taekwondo to represent Jammu and Kashmir. And that's not the only test they are gearing up for. Eligible to vote in this election for the first time, the energy is palpable on the ground. Also realize not just football, there's also a taekwondo team that's here. Look at that, young girls. I love it. To see young Kashmiri girls with so much talent, it makes my heart glow. Can I interrupt you for a minute? That's absolutely scary. आपसे तो कोई पंगा भी नहीं लेगा, है ना? कैसा है कोचिंग यहाँ पे? एंड हाँ, हमारे कोच रोहित सर है, वो बहुत ही अच्छे कोच है, हमें बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं वो। Kashmiri girls doing taekwondo, how is it seen? मतलब are your parents okay with it? Your friends? हाँ? मेरे पापा बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे गेम में। And what does it make you feel when you know that you're a taekwondo expert, you're representing Jammu Kashmir, India? हम बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं कहीं पे भी होके, हमें डर नहीं लगता। One move can I see from both of you in taekwondo? How does it feel to be participating in a sport like this? What does it make you feel? It feels great. For me, it's my passion, so I feel really great being on a mat, participating. कैसा लग रहा है इलेक्शन सीजन की? नेता आ रहे हैं, प्रोमिसेस कर रहे हैं, सोशल मीडिया चैटर हो रहा है। I mean, we're excited that we get to participate in for the first time, so that's a big thing. So कोई फेवरेट है अभी यहाँ पे किसी का? कोई लीडर अच्छा लग रहा है सुनने में? मतलब कि अच्छा ठीक है, दिस इज इंटरेस्टिंग, हमारा नेता हो सकता है। सुनने में तो सब अच्छा लगता है, लेकिन करने में पता नहीं चलता। सुनने में तो सुन लिया सब कुछ, लेकिन जब करने की बात आती है तो वी ऑल गेट डिसअपॉइंटेड। What is then your hope? आपको क्या लगता है कि क्योंकि अभी इलेक्शन का सीजन चल रहा है, तो जो भी लीडर बने जिस भी पार्टी से, वो क्या करे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए, यूथ के लिए? हाँ बताओ। स्पोर्ट्स को सपोर्ट करे, सब बच्चों को सपोर्ट मिले। किसी को पैसों की प्रॉब्लम होती है इसमें खेलने में, कोई एफर्ट नहीं करा, कोई बहुत अच्छा प्लेयर होता है वो वहां पे गिर जाता है क्योंकि उनकी इनकम वैसी अच्छी नहीं होती। बहुत सारे हमारे क्लब में भी है जो आगे नहीं बढ़ रहे, बहुत टाइम से खेल रहे हैं हमारे सीनियर्स, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहे क्योंकि इसमें पैसे भी बहुत लगते हैं। जो भी नेशनल इंटरनेशनल हमारे 1000 में पैसे जाते हैं, तो हमें वैसा सपोर्ट नहीं मिल रहा। हाउ डज इट फील दैट कश्मीर में यू सी दिस and not what we have seen in the past few years, कि ये अच्छा है, जरूरी है, आगे बढ़ना चाहिए इससे? हाँ, बढ़ना चाहिए, लाइक स्पोर्ट्स से। क्योंकि मैंने इट्स बिन 3 years नाउ सिंस आई एम इन खेलो इंडिया सेंटर। वी हैव बीन फैसिलिटेटेड विद एवरीथिंग। व्हाट इज योर मैसेज एज अ कश्मीरी गर्ल टू the rest of the India watching? Ma'am, I want the rest of the India to be peaceful. पीसफुल, यूनिटी होनी चाहिए, पीस होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जब हमने तो वो कहावत सुनी है, जब एक साथ होता है तो तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन जब अलग अलग होता है तो तोड़ना बहुत आसान होता है। तो जब हम एक साथ होंगे तो हमें कोई तोड़ नहीं सकता है। तो देयर शुड बी अ यूनिटी। आपको कौन मेंटोर करता है? रोहित शर्मा, ये हमारे कोच है जम्मू से। ये जम्मू से आप? Yes, ma'am. तो मतलब बेस्ट कोच। उसने उन्होंने हमें सारी अपॉर्चुनिटीज रखी है। मेन सपोर्ट सिस्टम जो है हमारा भी गेम का जो यहाँ चल रहा है कश्मीर में, दैट इज हिम। कैसे, मतलब मेंटरशिप आप किस तरह से? गाइडेंस होती है? गाइडेंस एवरी टाइम ही इज देयर फॉर अस। जैसे बाकी बच्चे खेलते हैं जो भी यहाँ पे पहले टाइकोंडो खेलते थे, वो बहुत रश गेम खेलते थे, इसने हमें गेम दिखाई। 3 साल से सर हमारे साथ है, लाइक इट्स हिज 3rd year हियर। सो जब इससे पहले हमारे पास कोई वे आउट नहीं था, लाइक हम ऐसे थे कि ये रास्ता भी है, ये रास्ता भी है, ये रास्ता भी है, लेकिन जब से सर आए तब से वी हैव गॉट 1 goal, 1 path, तो वी आर डायरेक्टेड टू दैट, which is
winning only. Focusing, winning, Are you- winning, and Are you aiming for the Olympic gold medal? Inshallah, inshallah. If you see one of them standing on the podium in Olympics, you saw them first on India today. Remember that. While cricket is in India's blood, not many know that Kashmir's willow bats have an international quality recognition. An established industry centered in Anantnag and Pulwama got a boost when cricket legend Sachin Tendulkar visited this shop in Pulwama, hitting a ball or two. And today, this shop is no less a legend in itself. Pooja Shali, television news journalist turned cricketer. तो जावेद जी, जब तेंदुलकर आते हैं तो उसके बाद तो अटेंशन अलग हो जाती है. तेंदुलकर आए, अजय देवगन को भी आपकी तरफ से एक बैट गया है, तो इससे कैसा रिस्पांस होता है? जब सचिन सर इधर आए थे हमारे पास तो हमने देखा, हम अचानक से शॉक से हो गए. इतना बड़ा खिलाड़ी हमारे फैक्ट्री में पधार रहे हैं. उसके बाद आपको लगता है पॉपुलर तो है विलो इंडस्ट्री, पर थोड़ा एक और अटेंशन आ जाता है, लोग और इंटरेस्ट ले रहे हैं? बिल्कुल, मैं कहता हूं जब से सचिन सर इधर आए तो सारे लड़के जो आप देखोगे ना, आप पूरा घूमेंगे, सारे लड़के आप बैट खेलने लगे सारे. अचानक सा उसके बाद अचानक ऐसे हो गया कि माहौल यही बन गया कि सारे क्रिकेटर ही खेल रहे हैं. मैं कहता हूं, मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप एक दो बार सचिन सर को और भेजे तो इधर फौज की कोई जरूरत ही नहीं है, और दो चार खिलाड़ी अपने आप ही चेंज हो गए. सारे लड़के आप देख ले मैम, सारे लड़के आजकल अपना इधर क्रिकेट ही खेल रहे हैं. एक वो स्पोर्ट्स और एंथुजियाज्म में फर्क आया है, आपको लगता है वो चीज आई है? बिल्कुल 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 बिल्कुल. आप देखिए सारे, मतलब जब से सचिन सर आए तो हमारे पास जितने बैट बनते थे हमें पूरा नहीं होते हैं, इतना बैट बिक रहा है. डिमांड बढ़ गई है. आपको लगता है कि जो क्रिकेट है, स्पोर्ट्स और ऐसे जो एक पॉजिटिव अटेंशन मिलती है इन चीजों पे, इस पे यूथ पे बहुत फर्क पड़ता है? जो आपने तो सभी कुछ देखा होगा, पुलवामा, अनंतनाग, यहाँ इस हाईवे पे भी, वो चेंज आपको लगता है जरूरी? बहुत सारा चेंज हो गया. देखिए पहले तो ड्रग्स में लड़के थे, वो भी ड्रग्स नहीं करते. In the lanes of Bemina, a star is born. Sadia Tariq is an 18-year-old, an international gold medalist, 3 times national gold medalist and 3 times national silver medalist in Wushu. An event organized by the Indian Army at district Bandipora, Kashmir several years ago. Sadia first jumped in to participate and never looked back. I think this is the house of this young star and how she's breaking the glass ceilings. Let's find out. And in Kashmir, you can actually just go in. You can, I feel that familiarity. Just open the gate and walk in. Sadia? Hi. How are you? आप कितना अपना स्टार बन गई हो? अरे माय गॉड, लुक एट दिस. और मैं अचीव. ऑल योर अचीवमेंट. How does it feel, Sadhya, to be achieving? Has it been easy? Has it been difficult? Support मिला है? खेलो इंडिया की टी-शर्ट पहनी हुई है. बिल्कुल. पहली बात, सपोर्ट तो मिला है काफी लोगों से, बट कब मिला? जब मैंने अचीव किया. उससे पहले तो इट वाज लाइक ये लड़की निकल रही है घर से, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए. बट जब अचीव करता है इंसान, तब ही इंसान को मतलब मोटिवेशन मिलती है. ये रहता है दिमाग में कि नहीं, इंडिया को और रोशन कराना है, अपने स्टेट को और रोशन कराना है. So that means the struggle is yours, achievement is everybody. Yeah, true. The sound of these medals, huh? How does that make you feel? For me, it is like my achievement, my hard work. मतलब अगर ये नहीं हुआ ना तो मुझे अपना आप अपना नहीं लगता है. मेरे को इन चीजों की जो शोर आता है ना, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं और मतलब अचीव करना चाहती हूँ, मैं रुकना नहीं चाहती हूँ. What is your criteria? अभी जब तुम वोट डालोगी उस दिन, फर्स्ट टाइम you're going to get inked, हाँ? So, but जब तुम वहाँ खड़ी होगी बैलेट पे, और क्या तुम्हारे माइंड में थॉट होगा कि तुम्हें इस मुद्दे पे या ये सोच के इस नेता, इस पार्टी के लिए वोट करना है? मेरे हिसाब से मैं तो ये सोचूंगी एज ए स्पोर्ट्स पर्सन
कि जो स्पोर्ट्स को आगे ले जाए, जो स्पोर्ट्स को आगे अचीव, मतलब ऐसा होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सबसे बढ़िया होना चाहिए। जैसे हरियाणा का मैं बात करूं, हरियाणा से भी ज्यादा बढ़ के हमारे JNK का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए स्पोर्ट्स में। यू नो व्हाट, मैंने कल एक वीडियो देखा, पापा ही दिखा रहे थे कि वो इंटरव्यू एक लड़की दे रही थी, जिसमें वो लड़की ये बोल रही है कि मैं वोट नहीं देना चाहती हूँ, मैं अपना कास्ट वोट नहीं करना चाहती हूँ इस साल और नहीं करूंगी। तो वो मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि क्यों, ऐसा क्या हुआ। मैं मानती हूँ कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में हालात खराब रहे हैं, बहुत टाइम पहले, 10 साल पहले अगर हम देखें तो बहुत हालत खराब थी। बट अगर हम लोग अभी देखें, अगर हम लोग नेगेटिविटी पे ही ध्यान दे, पॉजिटिविटी पे ध्यान ना दे, तो उस पे हमारी जो सोसाइटी वो आगे बढ़ नहीं पाएगी। वो चीज मेरे को है कि यूथ में, इस जनरेशन की लड़कियों लड़कों को ये दिमाग में होना चाहिए, अगर हम लोग एक कदम उठा रहे तो वो एक ऐसा कदम होना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो अच्छी बने। As the sun sets over skies of Srinagar, young men take to the pitch. शान हर कस हाँ छना हर कस बच गस वारिया ब्रोट पाकुन कोर लड़का कहाँ फर्क ही गस ना आसिन कहें ना फर्क छना कहें ना कहें कूच नेचू ना कहें जस कुनी कत आज हिशी कत आज लड़का ते तो कोर ती हो She's saying there's no difference between a boy and a girl and that she's our Shan, huh? Yeah. How sweet. How does it feel to hear it? मर्च ना वनान वैसे की सच शान है ना, आज शायद पहली बार बोला है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे तो कॉन्सेप्ट पहली बार ही देखा है। At the prestigious Delhi Public School, Srinagar, India's first school to have a floodlit ground, has also lit the future for many youngsters. This is the ongoing Red Premier Cricket League tournament, attracting talent and spectators from across the valley. These youngsters have found a calling to chart out a bright future in sports and to chart out a future for their homeland, Jammu and Kashmir. This election season, they get to decide. With Nasir Aziz Khan, Pooja Shali for India Today.